Good morning, students of class 5. In my previous class, I have already solved the question of comprehension A of lesson 7. I think you must have written your fair copy. You have prepared your fair copy very well because you have to learn with your copy. I suggest you again and again how to prepare your fair copy, and whatever is problem with you, if you are unable to understand, please ask me without any hesitation. So the all the questions of comprehension A, I mean question number 1 to 6 have already been solved, and of comprehension B 1 and 2 question is also discussed in my previous class. Now I want to go ahead, that is the comprehension B and question number 3. So I am sending you here with the solution of comprehension B question number 3 to 6 in written, and also I would like to get you understand that you may able to remember them very easily. Okay, so please see at your screen carefully, and whenever you feel any difficulty you may ask to me of without any hesitation. Thank you. So please watch at the screen. Hello students, this is the 7th lesson, boat races around the world. In this lesson we have already read about the different type of boat races all over the world. So now now I would like to go ahead with the solution of comprehension B question number 3. So you may see here the 3 number question. The Ballam Kali is not about winning a trophy but about unity and friendship. What does the statement mean? कहता है बल्लम कली किसी पदक जीतने से संबंधित सिर्फ नहीं है बल्कि यह एकता और भाईचारे से संबंधित है। तो इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आंसर जब ध्यान से देखिएगा, हमने आंसर तैयार कर दिया है आपके लिए कि दिस स्टेटमेंट्स मीन्स दैट द इम्पोर्टेंट थिंग इन बल्लम कली इज नॉट टू विन द ट्रॉफी but to come together, race together and celebrate the festival together, है ना। It is about unity and friendship because a large number of people work together to make the event successful and they all enjoy it together। कहता है इस कथन का अर्थ यह है कि बल्लम कली सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए ही नहीं होता है बल्कि एक साथ लोगों का आना, एक साथ दौड़ करना, एक साथ त्यौहार को मनाने के लिए होता है। यह एकता और भाईचारा के लिए है क्योंकि इस अवसर पे बहुत सारे लोग एक साथ मिल कर के काम करते हैं और इस त्यौहार को सफल बनाते हैं। सारे लोग एक साथ इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। यही इस स्टेटमेंट का अर्थ हुआ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वाई डू पीपल सेलिब्रेट द ड्रैगन बोट फेस्टिवल। लोग ड्रैगन बोट फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? लोग ड्रैगन बोट फेस्टिवल को क्यों मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 रहा है ना। मोर देन 2000 years ago a Chinese poet called Q Yuan fell into a river. The local people loved him. When they saw what had happened, they raced their boats to rescue him, but his body was never found. People celebrate the Dragon Boat Festival every summer in the poet's memory. कहता है आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात है कि चाइना के एक कवि थे जिनका नाम क्यू यॉन था, एक नदी में गिर गए। स्थानीय लोग उन्हें बहुत चाहते थे। जब उन लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया तो वो लोग अपने अपने नाव लेकर के दौड़ पड़े उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उनका मृत शरीर भी नहीं पाया जा सका। इसीलिए लोग हर एक समर में इस ड्रैगन बोट फेस्टिवल को मनाते हैं उस कवि की यादगारी में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 4 का आंसर। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन।
कहता है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रिगाटा हिस्टोरिका, हाउ डज दिस इवेंट सेलिब्रेट हिस्ट्री। कहता है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रिगाटा हिस्टोरिका, कहता है रिगाटा हिस्टोरिका के अंतर्गत क्या होता है ना। हाउ डज दिस इवेंट सेलिब्रेट हिस्ट्री, कहता है इस जो घटना होती है, ये जो रिगाटा हिस्टोरिका का आयोजन किया जाता है वो कैसे इतिहास को बताता है। तो आइए इसका भी आंसर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए और जूम कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो कहते हैं द रिगाटा हिस्टोरिका बिगिंस विद द हिस्टोरिकल पैरेड which is held in the memory of a day in 1489 when the Queen of Cyprus arrived at Venice. Gondolas are decorated in 16th century style and the crew members crew bears traditional costumes. People also sail wider boats. 4 races takes place after the parade. The races are divided according to the type of boats and the age of the rowers. कहने का मतलब ये हुआ कि रिगाटा हिस्टोरिका का शुरुआत ऐतिहासिक जुलूस के बाद होता है, जो कि उस दिन को याद दिलाता है, जो कि 1489 का दिन को याद दिलाता है, जबकि साइप्रस की महारानी वेनिस आई थी। गंडोलास को सजाया जाता है 16वीं शताब्दी की शैली में, और जो नाविक दल होते हैं वो अपने परंपरागत पोशाक पहनते हैं। लोग पानी में अपने बोट को उतारते हैं, चौड़े चौड़े नाव को उतारते हैं। 4 रेसों का आयोजन किया जाता है इस पैरेड के बाद, और ये जो रेस का आयोजन किया जाता है उसको बोट के और जो खेलने वाले होते हैं रोअर्स के एज के अनुसार इन रेसों को 4 भागों में बांटा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 आइए। व्हाट फीचर्स आर कॉमन बिटवीन दिस डिफरेंट बोट रेसेस, कहता है ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के बोट रेस होते हैं उनके बीच में क्या आम बात होती है, क्या एक जैसा चीज़ होता है अलग अलग बोट रेसों के दौरान। बोट रेस तो अलग अलग होते हैं लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि हर एक बोट रेस में कॉमन होता है, वो क्या कॉमन चीज़ है इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। These different boat races have a number of things in common. All of them are part of some festival. The boats in this race are special. They look like snakes or dragons, है ना, और they are gondolas and they are beautifully decorated. Music plays a big part in all these races, making the race more exciting. Also all the races celebrates the history and tradition of the place where they are held. कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे रेसों में बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो एक समान होते हैं, जैसे कि ये सभी जो बोट रेस होते हैं किसी न किसी त्यौहार का एक अंग होता है, मतलब त्यौहार के दौरान ही मनाया जाता है ना। सभी बोट रेस एक प्रकार का विशेष रेस होता है। एक कोई सांप के जैसा दिखता है तो कोई ड्रैगन के जैसा दिखता है और कोई गोंडोलाज होता है, और इन सबों को सुंदर ढंग से सजाया जाता है। सभी बोट रेसों में म्यूजिक जो होती है, संगीत जो होती है, वो मुख्य भूमिका उसकी होती है, जो कि रेस को और भी ज़्यादा रोमांचक बना देती है। और कहता है ये सारे रेस इतिहास को और उस जगह की परंपरा को बताती है जहाँ की इन रेसों का आयोजन किया जाता है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप अपने फेयर कॉपी में इसे अच्छी राइटिंग में लिख लीजिएगा साफ साफ। मेरे ख्याल से कहीं असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी असुविधा होती है तो आप हमसे पूछिएगा, और फिर अगले क्लास में इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। Thank you. Have a nice day. We will see again in the next class. Thank you.